We all completed. Do you all remember that we completed our drawing competition lesson and we were doing book back exercises on it? Yes, you all remember? All my kids remember? Very good. So, today we are going to learn about noun. What are we going to learn about? We are going to learn about noun. Do you remember we did a fun activity last time? बहुत अच्छा activity किया था ना बच्चों? क्या किया था? हमने name, place, animal, thing का खेल खेला था. हमें चीजें दी गई थी. हमने सही स्थान पे हमने लिखा था कि यह राम एक नाम है. Dog is a animal. Bangalore is a place and pen is a thing. Didn't we learn that as last time? Very good. Now, if you have any doubts, please put it in the chat box. Okay? What we are going to do? We are going to have a great conversation today about nouns. So, if you remember kids, we were learning about parts of speeches. Yeah? पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने यानी कि जब हम बात करते हैं व्हेन वी स्पीक 8 भाग होते हैं. कितने भाग होते हैं? 8 भाग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों. तो हमने देखा था पिछले बहुत पहले एक क्लास में देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं और उसमें क्या क्या है? नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इतने भाग होते हैं. अभी हम सारे भागों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमारे बुद्धि में क्या हो जाएगा? कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि व्हाट डिड वी लर्न? वी शुड लर्न वन थिंग एट अ टाइम. एक चीज को पहले अच्छी तरह समझ जाएंगे फिर बाकी चीजों के और बढ़ते जाएंगे. वेरी गुड किड्स. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? वी आर लर्निंग अबाउट नाउन व्हिच इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रामर. सो व्हाट इज नाउन? किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग यानी कि कोई भी चीज का जो नाम देता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. व्हाट इज इट? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. What is noun, my dear kids? Yes, you tell me what is noun. Comment. Very good. Yes, very good. See, noun gives us a name to a person. Very good. You remember the class. Place, animal, thing, and also I had told you previously that it gives a आइडिया, अ कॉन्सेप्ट को भी यानी कि फ्रीडम, वैसे भी आइडिया को भी जो नाम देता है वह कहते हैं स्वतंत्रता. जो है फ्रीडम, उसको भी नाउन ही कहा जाता है. एंड आइडिया ऑल्सो इज कॉल्ड अ नाउन. परंतु दिस इज फॉर द हायर क्लासेस. और आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में और पढ़ेंगे. व्हेन यू गो टू अ हायर क्लास यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. सो नाउ वी हैव टू जस्ट रिमेंबर नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. नेम फॉर अ पर्सन, place or animal or a thing. That is what noun is. Now let's go into more about noun. Let's learn more about noun. Okay, so this person with a big belly is a noun. Okay, these animals, these animals are noun. This duck is a noun. This cow is a noun. What does the cow say? Moo. And the cow is a noun. And the cow is a animal and it's giving a name, so it is a noun. Look at this sheep. This sheep is a noun. This duck is a noun. This is a chick, no small, जो अभी आया है, अभी पैदा हुआ है तो चिक 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 ऐसे आवाज करता है. So this is a noun and horse also is a noun. So all these are nouns because they are naming words to an animal, to many animals. Okay. And this person's name is Ram. And this Ram ka पेट भरा है. So we are talking about Ram. So Ram again is a noun. Very good. And here, see here, we did this wake up poem, you remember? What is it? The clock is a thing. The clock is a thing and it is a noun. What are the nouns we see in this drawing?
वी सी अ वॉल, देखो ये जो है ये वॉल है, तो वॉल अगेन इज अ नाउन। यहाँ पे देखो विंडो है, बताइए बताइए चैट बॉक्स में बताइए मुझे, प्लीज कम ऑन, पुट इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, यस, विंडो का सही कहा, विंडो इज अ नाउन। व्हाट एल्स डू यू सी? Put it in the chat box. Very good. Very good then. Yes, sun is a noun. Then what do you see? Do you see this? What is this? It's a cloud. यह देखिए, what is this? It's a clock. Very good kids. Clock का spelling CLOCK है, clock या घड़ी यहाँ पे दिख रही है, that also is a noun. This person here, this boy here, this boy is a noun. Now we don't know what this boy's name is, so this boy again is a noun. This bed is a noun. Very good kids. So we have found so many nouns in this one, this pillow, this blanket, everything is a noun. So now what did we understand? That there are so many nouns. The naming words are nouns. Okay. So what we understood today? We understood what is a noun. Okay. But do you know that kids, noun में कई तरह के noun होते हैं, बहुत सारे तरीके के noun होते हैं बच्चों. Yes, you know, last time we spoke about this. Very good. So, noun here, if you see, noun gives is a naming word for a name, place, animal, thing or idea. प्रॉपर नाउन होता है और कॉमन नाउन होता है. व्हाट इज प्रॉपर नाउन बच्चों, बताए, मैं बताऊं. प्रॉपर नाउन माने एक पर्सन का नाम, जैसे कि राम, और हमें किसी का नाम नहीं पता है तो वो बनेगा कॉमन नाउन, यानी कि बॉय. इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, और एक लड़का, किस लड़के के बारे में बात करें, whom are we talking about? If we don't know, then it is a common noun. Then collective noun का मतलब है, जैसे कि a pair of shoes. शूज कितना होता है, दो शूज होते हैं ना बच्चों. ये जो दो दो चीज के बारे में साथ में बात कर रहे हैं तो वो बनता है कलेक्टिव नाउन. ठीक है. और फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जैसे कि लव, फ्रीडम, वो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन का मतलब क्या है? मटेरियल माने कोई भी वस्तु, वस्तु यानी कि बैट, बॉल, पेन, पेपर, वो सब मटेरियल नाउन हो गए, क्योंकि वो सब वस्तुएं हैं. ठीक है बच्चों. और होता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन. सिंगुलर और प्लूरल नाउन माने एक वचन और बहुवचन. ठीक है. यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे एप्पल्स है. ठीक है बच्चों. तो अभी मैंने वापस आपको क्या सिखाया, सारी चीजों के बारे में एक साथ में बताऊंगी. इफ आई टेल अबाउट एवरीथिंग टुगेदर, व्हाट वी विल नो, वी विल गेट कंफ्यूज, बहुत सारे संदेह आएंगे. तो व्हाट वी विल डू, we will try to understand one thing at a time. Today we are going to understand singular and plural noun. What are we going to understand? Singular and plural noun. What is that? एक वचन और बहुवचन. Now what did I try to do? I tried to give an introduction. किस चीज के बारे में? What are we talking about? We are talking about noun. Very good kids. So now to deal about एक वचन और बहुवचन, we were learning last class, right? एक वचन और बहुवचन के बारे में हमने देखा था. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ठीक है. व्हाट डिड वी लर्न अबाउट सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन? ओके. तो सिंगुलर माने एक वचन, प्लूरल माने बहुवचन. वी अंडरस्टूड दैट. Very good kids. Now what are we going to do? You know, we are going to write the singular noun and plural noun. So the general rule is, general यानी कि रेगुलर. जनरल माने ऑलमोस्ट सारे सारे चीजों के जो रूल है, जनरल रूल है या रेगुलर रूल है, उसका क्या है पता है? कोई भी शब्द दिया गया हो तो उस पे हमें सिर्फ एक एस ऐड करना है. क्या करना है? एक एस ऐड करना है. यानी कि यहाँ पे बोट. तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, पता है? इफ बोट का बहुवचन लिखना है, इफ यू हैव टू राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ boat, which is a singular noun, one boat. So how do we write here? We write here as, we write this word just like that here,
बोट, एंड उसके पीछे क्या करेंगे, और एक एस ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, एस। ओके, सो बोट्स। सो व्हाट हैपेंड हियर, यहाँ पे ए सही से लिख देती हूँ बच्चों, नहीं तो ओ जैसा लग रहा है। ठीक है, ये पे बोट्स, बोट और बोट्स। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। यहाँ पे और एक बताती हूँ मैं, यहाँ पे टो। टो यानी कि हमारे जो अंगूठे हैं, जो लेग्स में अंगूठे हैं, वह है टो। और टो का जो प्लूरल फॉर्म है, टोस। अंगूठा का जो प्लूरल फॉर्म है, टो। इसके साथ ई के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ एक एस ऐड कर दिया, टोस। तो ये है हमारा रेगुलर। रेगुलर यानी कि ऑलमोस्ट हर चीज में ये रोजदार उपयोग होता है बच्चों। ठीक है, तो हमें ये रेगुलर का रूल समझ में आ गया कि हम सिर्फ उसमें एक एस ऐड कर देंगे। तो आपके जो बुक में है, आप लिख दीजिए मेरे साथ, रेगुलर नाउन के लिए हम सिर्फ एक एस ऐड करेंगे। ठीक है, सिर्फ एक एस ऐड करेंगे शब्द के पीछे, शब्द के आगे नहीं, शब्द के पीछे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो थम्स अप डालिए बच्चों। वेरी गुड। तो अभी आपको समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं, शब्द के जो वर्ड है उसके सबसे पीछे हम क्या डालेंगे, एक एस को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों को, वेरी गुड। अभी हम थोड़े इर्रेगुलर नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़े नियम होते हैं, हर एक चीज का एक नियम होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा अभी, व्हाट एंड ऑल वी हैव स्टडीड। तो जेंडर रेगुलर के लिए, रेगुलर नाउन के लिए हमने देखा कि हम सिर्फ एक एस को ऐड करेंगे। रेगुलर नाउन के लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक एस को ऐड करेंगे रेगुलर नाउन के लिए। ठीक है, अभी हम दूसरा एक रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, वह क्या है, वी विल सी। ओके, विल सी व्हाट इट इज। नाउ वी आर गोइंग टू समथिंग व्हिच वी लर्नड इन द लास्ट क्लास। आपको याद है मैंने क्या कहा था, अगर एक शब्द, वन वर्ड एंड्स विथ एस, यानी कि शब्द के आखिर में एक वचन, दैट इज अ सिंगुलर नाउन के आखिर में एस से खत्म होता हो, या दो एस, डबल एस से खत्म होता हो, या एक्स से खत्म होता हो, या श से खत्म होता हो, एस एच से खत्म होता हो, या वह सी एच से खत्म होता हो, तो श, ठीक है, श और छ, तो इनसे एंड होता हो, तो अगर यह शब्द के आखिर में आ रहा हो तो आप क्या करेंगे बताओ बच्चों, अगर शब्द के आखिर में आता हो तो आप क्या करेंगे, आपको पता है पिछले क्लास में बताया था, कमेंट्स में डालिए, चैट बॉक्स में डालिए, कम ऑन। मैंने क्या बोला था, एक वचन अगर एस, डबल एस, एक्स, एस एच, सी एच में एंड होता हो तो क्या डालेंगे, हाँ बच्चों सही कहा आपने, यहाँ पे ई एस आता है, ई एस। ई एस शब्द के आखिर में लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, शब्द के आखिर में लिखेंगे, यू विल राइट इट एट द एंड, एट द एंड यू विल राइट ई एस। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल हियर। अगर पीच, यानी कि यह एक फ्रूट है, एक फल है पीच, उसको हमें उसका प्लूरल फॉर्म, बहुवचन लिखना है, तो क्या करेंगे, शब्द को वैसे ही लिखेंगे, पीच लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, पीच के पीछे एक ई एस ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ई एस, पीचेस। ओके, यहाँ पे और एक शब्द एग्जाम्पल देती हूँ, डिश, यानी कि कोई भी जैसे कि खाने की कोई भी चीज हो, तो डिश, तो उसको क्या करेंगे, जब हमें उसका बहुवचन लिखना है, इफ यू हैव टू राइट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट, व्हाट डू, वी आर सेइंग सी एच हियर, सी एच, राइट, एंड हियर वी आर सेइंग एस एच, तो सी एच और एस एच आएगा तो वी हैव टू ऐड ई एस एट द एंड, यानी कि शब्द के आखिर, behind at the word, entire word, at the end of the word you have to add the es.
ओके, वेरी गुड। सो एस एच देखा तो भी क्या करना है, यहाँ पे डिश लिखना है और उसके आखिर हमें यहाँ पे ई एस लिखना है, डिशेस। सो इट इज डिश, डिशेस। वेरी गुड। नाउ आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। आप देखिए, गैस यानी कि कोई भी गैस हो, ठीक है, जैसे कि हम खाना बनाते हैं गैस में पकाते हैं ना बच्चों, तो गैस के क्या आ रहा है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन में अगर एस से खत्म होता हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे बताइए। ये शब्द को वैसे ही लिखना है, गैस। एंड व्हाट डू वी हैव टू डू हियर, we have to add es at the end of the word, es, gases. Okay, my dear kids, understood? वेरी गुड। अभी देखिए, क्लास, यहाँ पे डबल एस, तो डबल एस में खत्म हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू ऐड ई एस एट द एंड। सो व्हाट डू वी डू, यू हैव टू राइट क्लास जस्ट लाइक दैट एंड ऐड ई एस एट द एंड। सो वी हैव टेकन एस का, डबल एस का, श और च का एग्जाम्पल हमने लिख दिया। फॉर वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू फॉर एक्स। ओके, कैन यू सी बॉक्स, या इज इट क्लियर, यस, बॉक्स। तो यहाँ पे भी x में खत्म हो रहा है, तो व्हाट यू वुड डू, यू विल राइट बॉक्स एंड यू विल ऐड ई एस, बॉक्सेस। ठीक है, so what is the new thing we learn, if the word ends with s, double s or x or sh or ch, we write end में we add es at end. Okay, at the end we write s for regular noun, and अगर ये सब में end हो रहा है कोई भी शब्द, if it ends in this we write es. Okay kids, very good. Okay, now we are going to learn another rule. Is it clear? Put a thumbs up in the chat box everybody. Yes, very good. We learned this in the last class itself. So now we learn another rule, another two rules quickly, and we'll play a game. Okay? Come on. Now, if you see, so there are two rules for y. अगर एक शब्द y में end हो रहा है, if it ends in y, you have to check for two things. आपको दो चीज का ध्यान देना है, वह vowel में end हो रहा है, यानी कि vowel के आगे, इसके आगे कौन है, तो we have to see इसके आगे कौन है, who is before y से पहले, who is there, is it a vowel or is it a consonant? ठीक है, is it a vowel or is it a consonant? Okay, we have to see which one of the two it is. Okay, so what we do, if it is a vowel, if it is a vowel, then what do we do, हम सीधे, अगर यानी कि boy, यहाँ पे boy है, तो y के पहले कौन है, एक vowel है, तो what we will do is we'll treat it like a regular noun. अगर boy हमने यहाँ पे लिखा है और y के पहले एक vowel आता है, vowels कौन कौन से vowels हमें पता है, अंग्रेजी अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स में 5 ववल है, कौन कौन है हमारे ववल, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आर अवर ववल्स। अगर वाई से पहले, बिफोर वाई, कोई भी ववल यानी कि ए ई आई ओ यू, तो हम उसको रेगुलर नाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर नाउन का रूल आएगा, यानी कि बॉय के पीछे यहाँ पे एक एस ही लगेगा, रेगुलर नाउन का इस्तेमाल होगा। ठीक है, समझ में आ गया, पुट अ थम्स अप, वेरी गुड। ओके, नाउ अगर एक कॉन्सोनेंट, इंग्लिश अल्फाबेट पे कितने और कॉन्सोनेंट है, 21, क्योंकि 26 से 5 कम कर दिया तो 21 रहेगा, 21 कॉन्सोनेंट। तो अगर y से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ, एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। ओके, वी हैव बॉडी,
तो y से पहले यहाँ पे आप क्या देखेंगे, y से पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे d आ रहा है, d इज नॉट अ vowel. So what do we know? यहाँ पे अलग रूल आएगा. What rule will come when you are writing a plural form for y, when there is a कॉन्सोनेंट कमिंग बिफोर इट, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ पे डी है. तो इसका रूल क्या है पता है, इसका नियम क्या है पता है मेरे प्यारे बच्चों? y को हटा देना है, y को हटा देना है, और y के बदले क्या लिखना है पता है बच्चों? IES. क्या लिखना है? IES. तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा पता है बच्चों? BOD. y को हमें काट देना है और उसके बदले क्या लिखना है? IES. Bodies. What do we write? Bodies. So what is the new rule? If vowel and y come, हम SC डालेंगे. अगर कॉन्सोनेंट, CON सिर्फ लिख रही हूँ, कॉन्सोनेंट और y आ रहा है, तो हम y को पहले काटेंगे. क्या करेंगे? y को काटेंगे और उसके बदले IES लिखेंगे. क्या लिखेंगे? IES लिखेंगे. क्या लिखेंगे बच्चों? IES. बॉडी, बॉडीज. परंतु यहाँ पे देखा, बॉय बिकम्स बॉयज, बिकॉज y से पहले एक vowel आ रहा है. Very good, kids. You are very smart, my kids. Now, what we are going to do is we are going to do few more examples of this. Come on. आपको रूल अच्छी तरह समझ में आ गया ना बच्चों? Very good, very good. Okay. Now, जल्दी जल्दी से करते देखो. company. Y से पहले कौन आ रहा है? N is not a vowel, so it is a consonant. So what is the rule? We have to cut the Y and we have to write it like this. N तक लिखना है, Y को हटा के IES. कंपनीज. आर्मी, आर्मी, आर्मिनी का क्या है? Y को हटाना है क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है. और क्या लिखना है यहाँ पे? Put it in the chat box. ARM. स्पेलिंग बताइए. ARM. हाँ, IES. आर्मीज. हमारा जो परिवार है, सिंगल फैमिली बता रहे, तो क्या करेंगे? FAMILY. फैमिली. तो Y को हटा के क्या करेंगे? क्योंकि L इज अ कॉन्सोनेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे? FAMIL तक लिखेंगे. Y को हटा के क्या लिखना है? IES. ठीक है. दिस इज अनदर रूल. ठीक है. और दो रूल के बारे में सिखा देती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम. ओके. अगर कोई भी शब्द F और FE से एंड होता है, कोई भी शब्द F या FE से खत्म होता है, यानी कि यहाँ पे नाइफ और उल्फ, अगर F और FE में खत्म होता है, आप क्या करेंगे पता है बच्चों? यहाँ पे FE को काटेंगे और F को काटेंगे. यहाँ पे नाइफ को क्या करेंगे? NIVES. यहाँ पे VES लिखेंगे. ठीक है. तो VES लिखेंगे. F और FE को काट के VES लिखेंगे. और वुल्फ को कैसे लिखेंगे? F को काटेंगे और वुल्व्स लिखेंगे. VES. ओके. तो हमने और एक रूल क्या सीखा बच्चों? यहाँ पे हमने what did we learn now? If the word ends in F or FE, then we cut it. हम उसको काटते हैं. F को काटेंगे और FE को काटेंगे और उसके बदले क्या लिखेंगे? VES लिखेंगे. VES लिखेंगे. Okay? You understood this rule? Put a thumbs up in the chat box. Very good. तो हमने क्या देखा? ES कब आ रहा है? S, डबल S, X, SH और CH के बदले ES आ रहा है बच्चों. ओके. Y का दो रूल है. अगर Y से पहले एक ववल आ रहा है तो सिर्फ S आएगा.
उस y को काटेंगे नहीं और सिर्फ उसके पीछे s आएगा। बट अगर y से पहले एक कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे, y को काटेंगे और उसके बदले y के बदले IES लिखेंगे। आपने लिख लिया आपके नोटबुक में ये सब चीजें? वेरी गुड। और अभी आपने नया रूल और एक क्या सीखा? एफ से एफ या एफई अगर शब्द के आखिर में आ रहा है, एफ और एफई शब्द के आखिर में आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को काटेंगे और उसके बदले बीईएस लिखेंगे। यहाँ पे नाइफ नाइफ्स, उल्फ उल्फ्स लिखा है। ठीक है। और एक रूल सीख जाइए और मेरे साथ एक खेल खेलिए। कोई भी संदेह हो, एनी डाउट इज देयर, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। फॉर सर्टन समटाइम्स ओ अगर आखिर में आ रहा है, यानी कि तो अंत में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, शब्द के आखिर में ES ऐड करेंगे, यानी कि टोमेटोस, टोमेटोस। व्हाट डू वी डू? पोटैटो, वी पुट पोटैटोस, पोटैटोस। ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ एक खेल खेलूंगी। ठीक है। कम ऑन, आई एम शेयरिंग अ स्क्रीन। 1 minute kids, विल क्विकली प्ले अ गेम। सो आई अंडरस्टूड दैट आप लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं। ठीक है। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन? वेरी गुड। ओके, सो इफ यू सी योर स्क्रीन हियर, वी आर गोइंग टू प्ले अ गेम। चलो खेल खेलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन का। Okay. You must put away your dash after playing with them. यहाँ पे क्या बोला है? टॉय है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? You must put away your dash after playing with them toy. तो them आता है तो हमें पता है बहुत सारे टॉय के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे टॉयज के बारे में बात कर रहे हैं। तो टॉयज का क्या रूल है? वाई में खत्म हो रहा है। हमने क्या सीखा था? अगर वाई में खत्म हो रहा है, इफ इट इज एंडिंग इन वाई, we have to check whether there is a vowel or consonant. यहाँ पे vowel है, यानी कि A E I O U। ओ क्या है? एक vowel है। तो अगर vowel आ रहा है तो y के पीछे सिर्फ एक s ऐड करना है, इसको एक रेगुलर नाउन की तरह यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टॉयज डाल रहे हैं। देखते हैं सही है कि नहीं। वेरी गुड। चैट बॉक्स में बताइए कि सही उत्तर क्या है कि नहीं। ठीक है। The dash are swimming in the tank. तो SH में एंड हो रहा है, तो मैंने अगर यहाँ पे SH के बदले यहाँ पे फिश कहा, क्या हो रहा है? SH में एंड हो रहा है। तो मैं SH का रूल मुझे क्या पता है? फिश है तो SH के पीछे ES ऐड करना है। तो मैंने किया, तो देखो गलत हो गया। सही उत्तर क्या है? फिश। तो फिश जो है उसका जो, देखिए बच्चों मैं वापस बताती हूँ, जो फिश है, अगर उसके अनेक फिश है, देयर आर लॉट ऑफ फिश, तो भी वो फिश ही कहा जाएगा। वाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम फिश, यानी कि हम सिर्फ सैल्मन फिश के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही परिवार के फिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका जो बहुवचन है फिश ही रहेगा। अगर हम अलग अलग परिवार से आए हुए, यानी कि शर्मा परिवार से आए हुए, गुप्ता परिवार से, खान परिवार से, सैल्मन से, दर इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, राइट? गोल्ड फिश। तो अगर अलग अलग शार्क, बहुत सारे गोल्ड फिश, अलग अलग घरों से स्पीशीज के फिश के बारे में बात करें, तो उस वक्त फिशेस आएगा। बट यहाँ पे द फिश आर स्विमिंग इन द टैंक ही आएगा। ओके किड्स, वेरी गुड। मदर कुड नॉट फाइंड हर ग्लास, तो ग्लासेस लिखना है। तो डबल एस आ रहा है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ एक एस डालेंगे कि ई एस डालेंगे? देखिए ये गलत है, क्योंकि और एक एस, हमको एस को काटना नहीं। अगर दो एस है तो हम एक एस को नहीं काटेंगे, दोनों एस लिखेंगे। यहाँ पे दोनों एस लिखे हैं, तो ये हमारा सही स्पेलिंग है, ग्लासेस, GLASS। उसी प्रकार लिख के उसके अंत में ई एस डालना है। वेरी गुड।
द चर्च डैश आर रिंगिंग, द चर्च में बेल आर रिंगिंग, आर आए तो उसका मतलब क्या है कि वह हम बहुवचन में लिखना है, प्लूरल है। तो बेल क्या करेंगे, यहाँ पे एस से सादा से खत्म हो रहा है, तो ये एक रेगुलर नाउन है, तो उसके पीछे हमें रेगुलर नाउन में क्या करना है, सिर्फ एक एस ऐड करना है। बेल को वैसे ही लिखना है, बेल को यहाँ पे वैसे नहीं लिखा है, यहाँ पे BELLES लिखा है, तो ये तो एस या डबल एस या एक्स में नहीं खत्म हो रहा है, ये तो सिर्फ रेगुलर नाउन है, तो उसके पीछे सिर्फ एक एस आएगा। वेरी गुड, बेल्स, चर्च बेल्स आर रिंगिंग, वेरी गुड। द डैश आर स्वीट, द मैंगो, तो मैंगो का जो प्लूरल फॉर्म होगा, ओ में एंड होता है ना बच्चों, ओ में एंड होता है, तो इसके पीछे ES ऐड करना है। तो ये देखो मैंगो को उसी प्रकार पहले लिखेंगे, यहाँ पे भी MANGO लिखा है, यहाँ पे भी MANGO लिखा है, यहाँ पे ES लिखा है जो ओ का रूल है, और यहाँ पे S ही लिखा है, तो इस दोनों में कौन सही है, ES ही सही है, मैंगोस। पर देखो बच्चों, इसमें कहीं कहीं के एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन माने बहुत सारे अलग अलग रूल्स है, मैं उसके बारे में अगले क्लास में बताऊंगी। एडम हैज नो एनिमी, ये देखो वाई में एंड हो रहा है, तो वाई में एंड होते मैं क्या करूंगी, मैं अटेंशन दूंगी, क्या अटेंशन दूंगी, वाई से पहले कौन है, ध्यान क्या दूंगी, वाई से पहले ववल है कि कॉन्सोनेंट, एम में एक ववल नहीं है, ववल कौन कौन है, A E I O U, पर यहाँ पे एम है, तो एम इज नॉट अ ववल, तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे अलर्ट होना है, ध्यान देना है, वाई को हटा देना है, वाई को हटा के क्या डालना है, IES डालना है, तो ENEM लिख के IES डालना है, तो देखो ये रहेगा हमारा सही उत्तर, एनिमीज। वेरी गुड। वी पिक डैश फ्रॉम द गार्डन, देखो दे हैव गिवन बेरी, तो यहाँ पे भी वापस वाई आ गया, तो क्या ध्यान देना है वाई आते ही, व्हाट डू यू हैव टू पे अटेंशन टू, बिफोर वाई हु कम्स, इज इट अ ववल और अ कॉन्सोनेंट, टेल मी। यस, वेरी गुड, इट इज अ कॉन्सोनेंट, तो आप क्या करेंगे, आर इज अ कॉन्सोनेंट, तो वाई को हटा के IES ऐड करेंगे, वेरी गुड। दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग, देयर आर डबल आर हियर, दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग, this way they put only S, but R is a consonant, not a vowel, so what is the correct spelling, BERRIES, very good. The farmers dash walk slowly in the field. Sheep, very easy. We'll just put S. Sheep के पीछे S डालेंगे तो sheeps बन जाएगा. It's correct. Oh, that is not correct. देखते हैं. गलत है. Sheep का जो प्लूरल फॉर्म है वह sheep ही रहेगा बच्चों. ध्यान दीजिए यहाँ पे. एक मिनट. sheep का प्लूरल फॉर्म sheep ही रहेगा. तो sheep को sheep ही कहेंगे. sheeps नहीं कहेंगे. द फार्मर शीप वॉक स्लोली इन द फील्ड ही आएगा, ना कि शीप्स, ओके, तो ओनली शीप का प्लूरल फॉर्म शीप ही रहेगा, इट इज ए इर्रेगुलर नाउन, फिश का प्लूरल फॉर्म फिश ही रहेगा, ओके, वेरी गुड। तो द कैटरपिलर सडनली टर्न इनटू ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, यहाँ पे भी शब्द y में एंड हो रहा है, इट इज एंडिंग इन y, सो व्हाट डू वी पे अटेंशन टू, बाय नाउ यू शुड हैव अंडरस्टूड इट, y से पहले कौन आ रहा है, l, LAEIOU, यही ववल्स है, तो इसमें से कोई नहीं है यहाँ पे, सो दिस इज अ कॉन्सोनेंट, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, वी हैव टू कट द y एंड पुट IES, तो देखो BUTTERFLYS, नो दिस इज नॉट द राइट आंसर, BUTTERFL, y को हटा दिया है, यहाँ पे IES ऐड कर दिया, तो ये हमारा सही उत्तर है, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, बटरफ्लाइज। Now the last question. Mother cut the cheese sandwich into two half. तो दो, टू हाफ मैंने इट्स अ प्लूरल ना, एक हाफ नहीं बच्चों, दो हाफ है, तो हाफ को प्लूरल फॉर्म क्या है, एफ का रूल क्या है, अगर एफ या एफ ही आता है तो एफ को काट के BES ऐड करना है ना, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस ऑल्सो इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर, एफ के बदले BES डालना है, हाफ्स, वेरी गुड।
Very good, kids. So we did two mistake. Remember, fish is a irregular noun, so its plural form is fish. And again, what was the other mistake we did? Sheep. Sheep ka is a irregular noun, so s will not be added. It will be written as a sheep only. Okay, kids. So with this, today we end our class. Okay, बच्चों. So today we end our class. And so बच्चों, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत.